Hello and very good morning, students of class 6. I hope you all are well. This class is recorded for the sake of your convenience because today I am not available directly on Zoom class. Now, I just want to share few information about the chapter number 2. You know that we have already started chapter number 2 just because we have completed our chapter number 1 with notes. I hope you have done all the work. So in chapter number 2, what we will discuss in chapter number 2, electronic mail, electronic mail, chapter number 2, electronic mail, we will discuss about various features, okay, of electronic mail. I have already told you various things and various companies that provide the email services like Hotmail, Gmail, and very and you all. I also told you that the Gmail is the most popular service provider of email services. I also told you that email stands for electronic mail. So now I am just give you the elaboration and how the email looks. Okay. So you know that first of all, I just want to say one thing that you can mail with the help of your mobile as well as your computer. Okay. So there is no barrier between computer or mobile or any gadget which basically restrict you to give a mail. So I'm just sharing a screen right now. Just give me a moment. uh, mm, just I'm just opening my mail. Yes. So now, uh, class, I'm sharing a screen. Okay, now you can see that. Now you can see that this is an email. This is a Gmail panel where you have seen the various options that compose, inbox, started, send, draft, more. Okay, you can see this. After that, you have find many more options as well. Okay, you have to create your labels, manage labels, categories means trash. Similarly, you have to find meet, hangout. Okay, these are the few features. Again, um, from the right side you have to check your current email address. Currently I am using this email called Siddharth Gupta stfx@gmail.com. This is my current email address, right? You just look at this. I'm just using my current email address. Look at this, and this is my current email address. I'm just sharing this thing. I'm just using this as my current email address. That is, what is my current email address? This is, you can see that Siddharth Gupta stfx gmail.com. Okay, so I just told you that Siddharth Gupta stfx is the username and gmail.com is the domain name. I already informed this thing. Okay, so now we have to learn few more features of this thing. That is, now I'm just going to write I'm just going to send an email, okay, to some person. Okay, suppose, look, this is our normal draft inbox. First of all, I'm just tell you again. First of all, go to the right option and there is called compose. Look at this compose option. Compose means you have to create your own email. Okay, so I'm just going to write an email, but before that I have to told you few small things which you need to understand. So now you can see that the new panel is comes out. I think you can see this. If you not seen, I'm just sharing the screen again. You can see this. This is the screen. Okay, this is the screen. Wait. Okay, now you can see there are various options like to, subject, CC and BCC. Okay, these are the subject. Okay, so first of all, I just want to tell you that the to is means the person which you want to send the email. टू बेसिकली उस एड्रेस को डिफाइन करता है जिसको आपको ईमेल भेजना है. सपोज आपका नाम अजय है तो आपके ईमेल एड्रेस है ajay@gmail.com.
तो अगर मुझे अजय को ईमेल एड्रेस भेजना है तो मुझे टू में किसको डालना है, अजय का ईमेल एड्रेस डालना होगा। ओके, इसके अलावा मेरे पास दो ऑप्शन और दिए गए हैं, सीसी और बीसीसी के। कैन यू सी दिस, यू कैन इजीली सी दिस, सीसी एंड बीसीसी। तो यू कैन, दिस इज द टोटल, दिस इज सीसी एंड दिस इज बीसीसी। तो अब इसको भी मैं बता देता हूँ, सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है। सीसी स्टैंड फॉर, सीसी स्टैंड फॉर, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, जो मेल आपने जिसको भेजा है, आपको वही मेल किसी और लोगों को भी भेजना है, तो वही आप सीसी करके उस मेल में आप और लोगों के भी एड्रेस डाल देंगे, तो ये मेल उन लोगों तक पहुंच जाएगा, राइट। मगर बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है बच्चों की, जिन जिन लोगों को ईमेल मिला है वो आप कभी नहीं जान पाएंगे किन किन और लोगों को ईमेल भेजा गया है, सिर्फ आप तक ईमेल पहुंचेगा और ये आप कभी नहीं जान पाएंगे ईमेल किसके और किसके पास पहुंचा हुआ है। पर कार्बन कॉपी में आपको उन और लोगों के भी नाम पता चल जाएंगे जिन तक ये ईमेल पहुंचाया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट difference between CC and BCC. CC stands for carbon copy, BCC stands for blind carbon copy. ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप एक काम करता हूँ, आपको एक मेल कंपोज करके दिखाता हूँ। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बेसिकली बच्चों, किसी भी ईमेल में सब्जेक्ट डालना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है आप उस ईमेल का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मेन क्रक्स क्या है। तो बेसिकली सब्जेक्ट इज यूज टू गिव heading of the heading to the उस ईमेल को हेडिंग देने के काम आता है। गॉट इट और नॉट। नाउ अब अब आपको मैंने बता दिया टू जिसको हम भेजने वाले हैं उसका एड्रेस डायरेक्ट है ना। अगर मैं टू की बात करूं, टू इज द एड्रेस to whom you want to give email. I think you got it now. Now this is the whole scenario. to वो एड्रेस होता है जिसको हमें ईमेल भेजना है डायरेक्ट। बीसीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है जिन और लोगों को भी आप ईमेल भेज रहे हैं उन तक ये ईमेल पता चल जाए उनको कि और कितने लोगों को ईमेल पहुंच रहा है। और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें एक कार्बन कॉपी होती है मगर इसमें आपको ये नहीं पता चलता और कितने लोगों को ईमेल भेजा गया है। दिस इज ऑल सिनारियो। ओके, दिस इज ऑल सिनारियो। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं फ्रॉम क्या होता है। फ्रॉम का मतलब ये होता है, फ्रॉम का मतलब ये होता है वो एड्रेस, अ पर्सन हु सेंड्स द मेल। वो पर्सन जो मेल भेज रहा है वहां पे आता है फ्रॉम में, उसका एड्रेस आता है फ्रॉम में। जैसे हमारे केस में सिद्धार्थ गुप्ता @gmail.com, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो भेज रहा है ईमेल, तो ये हम होगा फ्रॉम में। ओके, इस तरीके से जो ईमेल भेजता है उसका एड्रेस आता है फ्रॉम में, और जिस तक पहुंचता है जिसको भेजा जाना है वो होता है टू में। जो वैसे आप लोगों ने लेटर वगैरह पोस्ट किया होगा तो टू में आप हमेशा उसका एड्रेस डालते हैं जिसको आपको भेजना है, ठीक है। और फ्रॉम में वो एड्रेस जहां से वो भेजा जा रहा है, तो यहाँ से मैं भेज रहा हूँ तो वो मेरा एड्रेस आएगा फ्रॉम में। ओके, नाउ दो चीजें और समझने वाली हैं, हेडर और बॉडी। हम अपना जो भी मैसेज है उसको बॉडी में टाइप करते हैं। किसमें टाइप करते हैं? बॉडी में। हेडर में हमारे ये सब चीजें आ जाती हैं और बॉडी में हमारा जो मेन टेक्स्ट है उसको हम लोग टाइप करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। सपोज दिस इज माय ईमेल। ओके, सपोज मैं किसी को मैं अपने आप को ही भेज रहा हूँ, मेरा दूसरा ईमेल अकाउंट है, मैं डाल रहा हूँ सिद्धार्थ G144@gmail.com। ओके, सीसी मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, बीसीसी भी फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है, उसको खाली छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट में डाल देता हूँ डमी मेल। इसमें मैं डालता हूँ यस दिस इज
this mail is sent for the learning purpose only। देखिए मैंने एक छोटा सा मेल डाला, ठीक है। इसके बाद देखिए भेजने में जहाँ टू पे मैंने उसमें एड्रेस डाला siddharth.g144@gmail.com, यानी इस तक ईमेल जाएगा। और भेजने वाला कौन है, फ्रॉम में किसका एड्रेस जाएगा, फ्रॉम में जाएगा मेरा, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं भेज रहा हूँ। तो सिद्धार्थ जो मैंने आपको अपना पहले एड्रेस बताया कि वो जो होगा वो फ्रॉम में जाएगा, राइट। इसके बाद मैं डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ। देखिए siddharth.g144@gmail.com पे वो ईमेल चला गया होगा, राइट। जैसे ईमेल चला जाता है, इसके बाद उसको देखने के लिए ये देखिए मेरा मैसेज चला गया है, ओके, इस एड्रेस पे siddharth.g144, ओके। अब मैं चेक करता हूँ कि ईमेल पहुंचा है नहीं पहुंचा है। इसको चेक करने के लिए मैं एक इनकॉग्निटो मोड खोलता हूँ और यहाँ पे खोलता हूँ जीमेल, ठीक है। जीमेल खोलने के बाद जो मेरी, आप पता नहीं आप उस चीज को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ओके। अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैं अपनी जो दूसरी वाली ईमेल है SIDDHARTH siddharth@gmail.com उस पर लॉग इन करता हूँ डायरेक्ट। पासवर्ड हो जाएगा मेरा, वो पासवर्ड मैं सीक्रेट रखता हूँ, वो मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। देखिए मेरा ईमेल लॉगिन हो गया है। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले एक मेल भेजा था आपको, ये देखिए, बी केयरफुल फॉर दिस मैसेज, रिपोर्ट पब्लिशिंग, ये देखिए मैसेज आया हुआ है, दिस ईमेल इज फॉर लर्निंग पर्पस, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ईमेल भेजी थी और ये देखिए एक छोटी सी वार्निंग भेज दी है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईमेल वर्क करता है, ठीक है। मेरे पास ये siddharth.g144 वाला ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे ईमेल आया है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं आपको इसको एक ग्राफिकली समझाऊं, तो मेरे पास एक ईमेल एड्रेस था, मेरे पास एक छोटा सा ईमेल एड्रेस था जो जहाँ, ये ईमेल एड्रेस था मेरे पास, मैं इसको सब हटा देता हूँ। यानी मेरे पास शुरुआत में एक ईमेल एड्रेस था सिद्धार्थ गुप्ता stfx@gmail.com से मैंने भेजा दूसरे ईमेल पे जिसका नाम था siddharth.g144@gmail.com, इस एड्रेस पे मुझे भेजना बेसिकली, राइट। तो ये जो हो गया, यहाँ पे मैंने जो मेल भेजी ये कहलाता है सेंडर, ये कहलाता है सेंडर जो ईमेल भेज रहा है। इसका एड्रेस बेसिकली आता है फ्रॉम में, ओके। और ये जो एड्रेस होता है ये कहलाता है रिसीवर, ये कहलाता है रिसीवर। ये आता है बेसिकली टू में, इसका एड्रेस आता है टू में। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मैंने इसको भेजा था सिद्धार्थ जी, ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया हमारे केस में, और उल्टा भी हो सकता है, ये सेंडर हो सकता है, ये रिसीवर भी हो सकता है, ठीक है। मेरे केस में मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, ये सेंडर था, ये रिसीवर था, और हमारा जो ईमेल था वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भेजा गया था, ओके। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। तो आज के लिए मैं इतनी ही क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, आगे इसके बाद की जो चीजें वो मैं लाइव क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू क्लास।